No. बात नहीं. Good morning. Good morning. Now today we'll discuss about program development life cycle. In short, you can also say PDLC. Now, basically in last class we'll discuss about program and process. So you have an idea about the difference between program and process. You can also say that the process is the running entity and program is the static entity. Any whatever stored program you have in the computer's memory, that program become process whenever it is in the executable form. यानी जब एग्जीक्यूशन का फेज होगा तो वो प्रोग्राम आपका प्रोसेस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा. I also shared some contents related to that previous classes in your group. We just go through that one. In that particular content, some assignments is also mentioned there. So you just complete that assignment also related to the particular topic like fetch, decode, execute, and program and process, as well as construct related question also. So you can select at least one problem related to the sequential selection and iteration construct. तो आप इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी ले सकते हैं जिसमें सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट को यूज किया गया हो, जिसमें सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट यूज किया गया हो और जिसमें आइटरेटिव या रिपीटेटिव कंस्ट्रक्ट यूज किया गया हो. ठीक है ना. तो अब सीक्वेंशियल तो सब में रहेगा, सिलेक्टिव हो या आइटरेटिव हो. तो जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम लिखने से पहले आपको कुछ प्रक्रिया से गुजरना होता है. यानी कि आप भी जब रियल लाइफ में भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको फाइनल एग्जीक्यूट करने से पहले आप सिनेरियो तैयार करते हैं कि आपको क्या क्या करना है. तो PDLC इज दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन विच वी डिस्कस द होल सिनेरियो of any program development. That's why it is known as life cycle, because whenever you are developing any program, then that program moves from one form to one phase to another phase. एक phase से दूसरे phase में जाएगा. तो सबसे पहले whenever we discuss the topic, I just share the contents in your group also in PDF form. तो सबसे पहले whenever any assignment you will receive, जब भी आप कोई असाइनमेंट रिसीव करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? What is the first initiative you will take whenever you receive any assignment? सबसे पहले anyone? फेच तो ठीक है, फेच तो है, फेच तो करना ही पड़ेगा, वो तो इंटायर प्रोसेस एग्जीक्यूशन के समय भी आपको फेच करना है. डिकोड, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट को से अलग थोड़ा सोचिए. आप सबसे पहले क्या करना होगा? फेच करने के लिए आपको क्या करना होगा? यानी व्हाट टाइप्स ऑफ फेच और सर्च यू परफॉर्म टू अकम्प्लिश दैट असाइनमेंट. तो फेच तो कर रहे हैं, लेकिन फेच करने में क्या कर रहे हैं? यू नीड अ फार्मूला, यू नीड अ फॉर्मुलेशन कि हाउ वी फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपके पास सोल्यूशन के फॉर्म में क्या प्रोसीजर होगा. तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? अगर आपसे पूछा जाए कि write a problem, write a program to find out area of circle. So to find out area of circle, you need the formula to find out the area of circle, because that formula gives you the list of input as well in the form of variable and constant. आपको कौन सा वेरिएबल और कौन सा कांस्टेंट लेना पड़ेगा ये तभी पता चलेगा जब आप एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला समझ लेंगे. यानी कि जब आप बोलते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो यू विल गेट वन कांस्टेंट एंड वन वेरिएबल. यानी व्हाट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, हाउ मेनी वेरिएबल्स,
how many number of variables you have to take input to finalize the objective. So here pi is what? Pi is the constant value. You can say constant 22/7 या 3.14 in floating point manner, and your r is radius. So you need at least one input for radius and one constant value in that is the that holds the value 3.14. तो अगर आप रेडियस ले लेते हैं तो रेडियस के कोई डेटा को यूज करके और पाई का वैल्यू को यूज करके यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्किल. बट व्हेनेवर द क्वेश्चन चेंज, you have to find out the area of rectangle. Then there is a formula L into B, that is length into breadth. Now you need two input. By this formula you will get the list of inputs. How many inputs you have to choose to perform the particular. तो area of rectangle के लिए length और breadth आप ले रहे हैं. अब ये लेंथ और ब्रेथ के लिए कोई भी वेरिएबल लेंगे आप, ए बी सी पी क्यू आर, कोई भी दो वेरिएबल लेना होगा जिसका नाम कुछ भी लेंगे, ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि लेंथ और ब्रेथ लिखेंगे तभी वेरिएबल में वैल्यू आप लेकर उस पर प्रोसेसिंग कर पाएंगे. यू कैन टेक एनी नेम, बट योर सेंस इज व्हाट, दैट वेरिएबल इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. दैट मींस इफ यू आर टेकिंग हियर योर नेम आल्सो इट वर्क्स. अगर आप अपना नाम भी लेते हैं मोहन सोहन, बट वो जरा साइज में बड़ा है, कैरेक्टर ज्यादा ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर मोहन सोहन का एम, मोहन का एम और सोहन का एस भी ले सकते हैं. या अगर पूरा मोहन लिखेंगे तब भी इसके अंदर जो वैल्यू सपोज 12 और इसके अंदर 14 डाल रहे हैं, तो ये 14 और 12 जो है मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देगा. तो वेरिएबल नेम आप कुछ भी लेंगे, उसके लिए रूल्स आप पढ़ेंगे जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे. बट बिफोर डिस्कशन सबसे पहला इनिशिएटिव आपका क्या होगा? सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करना, चाहे वो प्रॉब्लम मैथमेटिकल हो, लॉजिकल हो, ठीक है ना, कंप्यूटेशनल हो, या बिना कंप्यूटेशन के भी किसी तरह का अगर लॉजिकल सिनेरियो या स्टेप और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, तो वहां पर डिफाइन करना होगा आपको. करना क्या है? तो वंस यू गेट द डेफिनेशन, यू गेट द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स या लिस्ट ऑफ इनपुट्स आप बोल सकते हैं, बिकॉज दैट इनपुट्स आर यूज्ड फॉर फाइनलाइजिंग एनी प्रोसेस. किसी प्रोसेस को फाइनलाइज करने के लिए वो इनपुट्स यूज किया जाएगा. जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हुई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपका लेंथ एंड ब्रेथ यूज हुआ, एरिया ऑफ सर्किल के लिए रेडियस यूज हुआ कांस्टेंट वैल्यू के साथ. तो सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कोई भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा तो सबसे पहले उसको डिफाइन करना है. If you completed the definition part in a successful manner, then you think about analysis. यानी कि next page is problem analysis. Now in the last class we just shared the example of making a cup of tea. So in making a cup of tea, we just see that all the three constructs is used. Whenever you are making a cup of tea, all the three construct like sequential, selection and iterative construct, तीनों construct हमने use किया. तो in the same way, आप जब उसी process को अगर हम development stage में देखें, तो वहां पर भी आपका definition, यानी किसी भी तरह का problem को solve, यानी if you are making a cup of tea, then first of all you have to decide what are the list of inputs you have to use to finalize the objective. तो डेफिनेशन पार्ट कंटेंस, और दिस डेफिनेशन जो आपका पार्ट है वो ये आपका फाइनलाइज करेगा लिस्ट ऑफ इनपुट, कि आपको कितने इनपुट चाहिए जिस इनपुट को प्रोसेस करके आप आउटकम जनरेट कर पाएंगे. नाउ एनालिसिस फेज गिव्स यू द वेरियस सॉल्यूशन, यानी कि उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वेरियस सॉल्यूशंस आप लेंगे, तो उसके लिए अलग अलग तरीका का इस्तेमाल करेंगे. लाइक इन एनालिसिस फेज we are using various programming tools, यानी कि at that moment we do not have any language or programming or compiler or interpreter through which we can implement the objective. We have a list of instructions. After definition we finalize the inputs finalize हो गया. input finalize करने के बाद आपको ये सोचना है कि उस इनपुट को प्रोसेस कैसे करना है.
तो प्रोसेस करने के लिए वी हैव ए प्रोग्रामिंग टूल्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड। ठीक है ना। अब ये एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड्स। तो एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कोई भी फाइनाइट इसलिए कि एक सर्टेन सीक्वेंस होगा आपका, फाइनाइटनेस की तरफ की एक टर्मिनेशन पॉइंट होगा। अगर हम लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो दैट इज ट्रीटेड एज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बेसिकली क्या है? ये आपका अरेबिक वर्ड अल-ख्वारिज़मी से बना है। अल-ख्वारिज़मी का मतलब होता है रेसिपी। तो एल्गोरिथम में जब आप लिखते हैं तो आप एक लिस्ट इंस्ट्रक्शंस का एक सीक्वेंस तैयार करते हैं, जो सीक्वेंस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेसिबल है। दैट मीन्स कि राइट नाउ व्हाटएवर एल्गोरिथम यू आर डिजाइनिंग, दैट एल्गोरिथम इज नॉट फॉर एनी सी लैंग्वेज, C++, जावा, ठीक है ना, ASP.NET, VB.NET, that is universal for any programming language. That means the same algorithm implemented in various programming language. So once you are writing algorithm for a specific objective, that algorithm works for any language. यानी implementation आप किसी language में कर सकते हैं। तो algorithm हो गया आपका step by step. Flow chart is what? In details you just discuss flow chart and types of flow chart. Right now we discuss that what is flow chart. तो जो आप स्टेप बाय स्टेप रिटन इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, उसी का ये डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल व्यू है। डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल व्यू ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम यानी एल्गोरिथम का डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल व्यू आपका जो है वो फ्लो चार्ट है। नाउ व्हाट इज सूडो कोड? तो सूडो कोड इज द फॉल्स इमेशन। Actually, pseudocode never give you the real solution. Pseudocode is the code which comes in your mind whenever any problems you will get. जब भी आप कोई प्रॉब्लम आपको मिलेगा, तो आपको एक फॉल्स इमेशन क्रिएट होगा आपके माइंड में, वो एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे अगर आपको बोला जाए कि 2 नंबर को जोड़ना है, तो आपके माइंड में एक थिंकिंग प्रोसेस इनिशिएट होगा, दैट इज अ सूडोकोड। अच्छा, 2 नंबर को जोड़ना है तो 2 नंबर इनपुट लेंगे, सम करेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। बट सम किस ऑपरेटर के थ्रू होगा? then there is no need to mention in the pseudocode. Pseudocode never give you the real solution. Pseudocode give you the idea only. So whenever any assignment comes in your mind, whatever idea comes in your mind, आपके माइंड में जो भी आइडिया आना शुरू हो गया, वो आपका एक तरह से क्या pseudocode। इसीलिए इसको false इमेशन कहा कि it is not giving you it is not a valid solution for the problem. So algorithm and flowchart give you the real solution because that is easily implemented in any programming language. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो एल्गोरिथम को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस का देता है, जिस सीक्वेंस को आप फॉलो कर सकते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बट सूडो कोड इज द फॉल्स इमेशन व्हेनेवर एनी आइडिया कम्स इन योर माइंड, एनी प्रॉब्लम, आफ्टर रिसीविंग एनी प्रॉब्लम, then that is treated as a pseudo code. So we just try to write that pseudo code also. So these are the programming tools which gives you the assistance whenever you are in the process to design any program. किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करने का आप जब प्रोसेस में होंगे, तो ये सारे टूल्स होंगे जिसको आप यूज करेंगे। आप लिखेंगे, आपका लिखा हुआ, बहुत बार देखिए आप कहीं जाते हैं किसी एरिया में, तो उस किसी कॉलोनी में गए, उस कॉलोनी में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ लिस्ट ऑफ क्वार्टर्स, और लिस्ट ऑफ क्वार्टर्स में रहने वाले लोगों का नाम भी दिया है। आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के यहाँ जाना है, तो वो लिस्ट को पढ़ने में जितना समय लगेगा, अगर क्वार्टर नंबर आपको पता है और मैप भी बगल में बना हुआ है, तो मैपिंग से आप इजीली लोकेट कर सकते हैं उस जगह पर जहां आपको जाना है, rather than to read the instructions display onto the particular board. वहां पर 2000 लोगों का नाम लिखा हुआ है, उनका क्वार्टर डिटेल्स लिखा हुआ है, still it is tough to identify the location where you have to allocate. But from diagrammatic view of the same, you can easily allocate yourself on the destinative location. So that is the flow chart. Flow chart gives you the diagrammatic or pictorial view of the
इंस्ट्रक्शंस, जो आप इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, तो अगेन यहाँ पर क्या फ्लो चार्ट में सर्टेन सिंबल्स यूज होगा, वो सिंबल स्पेसिफिक रीजन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि उस सिंबल को देख के ही समझ में आ जाएगा आपको यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा होगा, सिंबल को देख के ही पता चल जाएगा कि उस वहां पर डिसीजन लिया जा रहा होगा, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट किया जा रहा होगा। तो आप उस बॉक्स को ही देखकर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस स्टेप के बाद कौन सा पर्टिकुलर बॉक्स किस तरह के प्रोसेस या किस तरह के सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कब प्रोसेसिंग हो रहा है, कब डिसीजन बनाया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग हो रहा है, कब इनपुट लिया जा रहा है, कब आउटपुट जनरेट हो रहा है, ये सारा चीज आप उस बॉक्स के आइडेंटिफिकेशन से ही समझ में आ जाएगा आपको। तो डायग्रामेटिक और पिक्टोरिकल व्यू ऑफ एल्गोरिथम इज इजी टू इम्प्लीमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट there is no need to design or draw the diagrammatic or pictorial view of algorithm to write the program. प्रोग्राम लिखने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एल्गोरिथम लिखना पड़े, बिना एल्गोरिथम लिखे भी आप बिना डायग्रामेटिक यानी फ्लो चार्ट बनाए भी एल्गोरिथम से काम चल सकता है। बट व्हेन यू बिकम प्रोफेशनल देन एल्गोरिथम भी लिखने का जरूरत नहीं होगा, आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज फॉर इनिशियल। नाउ after finalizing the algorithm, first we discuss this section today and then we discuss the details. तो प्रोग्रामिंग टूल्स में ये आपका एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड आया। अगेन ये एल्गोरिथम, सूडो कोड और फ्लो चार्ट जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग वो 3 कंस्ट्रक्ट यूज करेंगे, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट यूज किया जा सकता है, सेलेक्टिव हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका प्रॉब्लम कैसा है, और आइटरेटिव भी हो सकता है, रिपीटेटिव भी हो सकता है। तो आपका एल्गोरिथम जो आप लिख रहे हैं वो भी तीनों कंस्ट्रक्ट को यूज करता है। इफ देयर इज नो सेलेक्टिव मेजर, इफ देयर इज नो आइटरेटिव और रिपीटेटिव मेजर, देन ओनली सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द एल्गोरिथम, एट द सेम टाइम फ्लो चार्ट आल्सो। बट इफ देयर इज एनी सेलेक्टिव मेजर, अगर किसी तरह का सिलेक्शन कंडीशन बेस करना है तो आपका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट भी सेलेक्टिव सीक्वेंशियल के साथ यूज करेगा। तो वहां पर भी डिसीजन बॉक्स यूज होगा, जिसको हम लोग डायग्रामेटिक डिस्कस किए थे, वहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट में, तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट में आपका बीच में डिसीजन बॉक्स यूज हुआ था, वो दैट इज द फॉर फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के लिए यूज किया गया। नाउ अब ये सारे कुछ करने के बाद आपको क्या चाहिए, यू नीड टू कोड, कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम। नाउ दिस थर्ड स्टेज इज द स्टेज इन विच यू आर इन द प्रोसेस टू सेलेक्ट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब ये तीसरा जो स्टेज होगा, इसमें आपको ये सोचना है कि इन विच लैंग्वेज यू वांट टू इंप्लीमेंट इट। तो इन दिस फेज यू हैव टू टेक डिसीजन द लैंग्वेज इन विच यू फील कंफर्टेबल। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उस लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि आप सी में कंफर्टेबल हैं तो सी लैंग्वेज, C++ में कंफर्टेबल है तो C++। दैट मीन्स यहाँ पर आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, बोलिए, खड़ा हो जाओ। क्या समझा रहे हैं पहले ये बताओ। हाँ, तो वही पूछ रहे हैं कि आप क्या समझ रहे थे अभी तक बैठ के। एक मिनट ब्रो, हाँ बोलिए। आ जाओ, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। एक मिनट, टुडे योर फर्स्ट क्लास। हाँ, तो क्या नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो यही तो पूछ रहे हैं ना, क्या नहीं समझ में आ रहा। जो पढ़ा रहे हैं उसका टॉपिक नाम बताइए पहले, वो तो बताइएगा। हाँ हाँ, प्रोग्राम समझ में आता है। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, जब किसी प्रोग्राम को आगे डेवलप करने के दौरान क्या क्या एरिया से गुजरना होगा। आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उस प्रोग्राम को फाइनलाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप से गुजरना होगा, उसी का स्टेप्स है। तो उसमें अगर प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर प्रोग्राम ही नहीं हुआ, आप रियल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम मिलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, बिकॉज वो प्रॉब्लम को आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है ना। अब उसको इस तरह से समझिए,
तो ये जो बता रहे हैं ना प्रोग्राम डेफिनेशन या प्रोग्राम एनालिसिस, तो किस चीज से कनेक्ट करके बता रहे हैं या क्या बता रहे हैं, सब कुछ नहीं समझ। हाँ, किस चीज से बता रहे हैं वही कनेक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से थोड़ा सुनिए, अब बीच में आपको हम पूछेंगे, उस चीज को इंटरेक्ट करिएगा। देखिए, प्रॉब्लम डिफिनीशन, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम मिले आपको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हाँ, तो डिफिनीशन कैसे निकलेगा? खड़ा हो जाओ जी, तुम अभी जो आए थे खड़े हो जाओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दिए हम, ठीक है ना, सपोज एक प्रॉब्लम दे रहा, बात नहीं, टू फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपको जो भी प्रोसीजर आप लिखिएगा, उसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए? ये लेंथ ब्रेथ कहां से लाए? ये लेंथ ब्रेथ कहां से लाया? लेंथ ब्रेथ कहीं से तो लाए होंगे डिसीजन लेने के पहले। कैसे पता चला कि लेंथ और ब्रेथ कहीं हमको यूज करना होगा? हाँ, क्योंकि फार्मूला आपको पता है। अगर फार्मूला नहीं पता होगा तो जाएंगे ना, फार्मूला पहले चेक करेंगे क्या होगा। दैट इज द प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो एनी टाइम व्हेनेवर यू गॉट द प्रॉब्लम, you have to think about the definition, because that definition gives you the list of input. जैसे अभी आपने बताया लेंथ एंड ब्रेथ लेंगे, तो लेंथ एंड ब्रेथ इज द इनपुट, and length and breadth is decided by you as an input whenever you have a formula for that problem. So problem definition is the stage in which you are defining the problem. Problem जो आपको मिला उसको define कर रहे हैं। तो ये आपको एक क्वेश्चन दी जिसका आंसर आपको पहले से पता था, तो डिफिनीशन का काम आप कर लिए थे, इसलिए आपके पास लेंथ एंड ब्रेथ आ गया। लेकिन अभी हम अगर दूसरा कोई क्वेश्चन पूछे जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं हो, तो पहले तो डिफिनीशन आपको सर्च करना होगा कि इसमें क्या इनपुट लिया जाएगा, ठीक है ना, उसका परफेक्ट आंसर के लिए। तो उसके लिए हमको उसका पहले फार्मूला, डिफिनीशन यानी फार्मूला, ये मैथमेटिकल के केस में है। अगर लॉजिकल होगा तो पहले हमको एनालाइज करना होगा कि इसको पूरा करने के लिए क्या हमारा लॉजिकल स्टेप्स होगा, और उस लॉजिकल स्टेप से आपको लिस्ट ऑफ इनपुट्स पता चलेगा। तो ये फर्स्ट स्टेज है जिसको आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले लेते हैं। तो जैसे लेंथ एंड ब्रेथ आप फाइनलाइज किया, ये लेंथ ब्रेथ उस फार्मूला से ही लिया है, क्योंकि उस फार्मूला में अगर लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं होता, अगर पाई आर स्क्वायर होता एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप लेंथ ब्रेथ नहीं बोलते, आप बोलते रेडियस लेना होगा। पाई का वैल्यू 3.1 या 22/7 लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? So this is the problem definition. So I am taking example in which you feel comfortable. There are a lot of example because mathematical example आपने किया है, रेगुलर लाइफ में मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, तो बिना फॉर्मूला के आप ट्रिग्नोमेट्री का एक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वहां लिस्ट ऑफ फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है, तो why you are going to see the formula? Just to finalize the solution. So problem definition is the phase in which we are in the search of the definition of the problem, because after completion of that searching you will have a list of inputs on which you perform operation. Are you getting the point? It is clear? Now after that problem analysis. अब ये प्रॉब्लम का डिफिनीशन आपको मिल गया, तब आप एनालाइज करिएगा कि इसको हम ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्रोसेस सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आपने बोला कि एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, लेकिन लेंथ इनटू ब्रेथ करने से पहले क्या करना होगा ये सोचेंगे पहले। तो पहले हमको लेंथ और ब्रेथ को इनपुट लेना पड़ेगा, वैल्यू इनपुट लेंगे और फिर उसको प्रोसेस कराना पड़ेगा। दैट इज कंसीडर्ड अंडर प्रॉब्लम एनालिसिस। अब ये सारे स्टेप्स को लिखने का तरीका 3 है, ये तीनों टूल्स के फॉर्म में यूज करते हैं, चाहे वो एल्गोरिथम हो, फ्लोचार्ट हो या आपका सूडो कोड हो। So these are the tools through which you analyze the problem. And when you analyze the problem, whenever you have a definition of the problem, आपके पास जब definition आ गया तब आप analyze करना शुरू करेंगे। Analyze करने के लिए ये सारे tools आप use करेंगे, algorithm लिखेंगे, step by step sequence of instruction, उसका diagrammatic representation करेंगे, pictorial representation करेंगे flowchart के form में, ताकि किसी भी तरह से वो solution आप आसानी से समझ सकें। लेकिन ये सारे करने के बाद अब आप चाहते हैं कि इसको हम देखना चाहते हैं। तो इन कंप्यूटर whenever you are in search of implementation of the particular objective, क्योंकि ये सारा कुछ तो मैनुअली लिख लिया आपने, डायग्रामेटिक देख लिया, लेकिन अब ये रियल में एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं,
तो उसके लिए फिर आपको कंपाइलर, इंटरप्रेटर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको जरूरत पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप इज द कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम। हाँ बोलिए बोलिए। एल्गोरिथम में सीडो कोड अगर नहीं यूज करेंगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इससे क्या यूज होता है एल्गोरिथम और प्रोग्राम में? किसका? सीडो कोड का। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। सूडो कोड के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। एल्गोरिथम में सूडो कोड इज नलीफाई। आप इसको बिना वेटेज का भी एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट पर काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते हुए भी आपके माइंडसेट में जब प्रॉब्लम आता है तो आपके माइंडसेट में एक फॉल्स इमेशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो जो भी चीज सोच रहे हैं उसी चीज को एल्गोरिथम में लिखेंगे ना, क्योंकि जब सोचेंगे नहीं तो फिर सर्च क्या करेंगे? आप सोचे तभी तो आपको पता चला कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला चाहिए, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला चाहिए। तो ये सोच जो आपके माइंडसेट में आया, दैट इज द सूडो कोड। सूडो कोड आप नहीं चाहते हुए भी आपके स्टेप्स यानी टूल्स के रूप में आप उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसको कॉपी पर लिखने से सूडो कोड नहीं होता है। आप जैसे ही कोई प्रॉब्लम मिलता है आपके माइंडसेट में एक थिंकिंग प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, और वो थिंकिंग सेट एक्चुअली कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एक सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना पड़ता है। चाहे वो आप लॉजिकली लिखे, माइंडसेट में तैयार कर लें एल्गोरिथम कि हमको 2 इनपुट लेना है और दोनों इनपुट लेने के बाद ये प्रोसेस में ये फॉर्मूला यूज करना है, तब जाके हम आउटकम तक पहुंच पाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसलिए सूडो कोड नहीं चाहते हो कि सूडो कोड आपको यूज करना ही है, करते हैं आप। ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ अगेन यहाँ पे क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम लिखने के लिए हमको एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट बनाना पड़े। बट दीज आर द टूल्स। If you want to take assistance, you can take the assistance. Otherwise, if you do not want to take assistance, you directly implement it in a programming language. So when you become professional, then number of times you are not going to write the algorithm, draw the flowchart, and then after writing the program. These are the initial steps for the beginners. So ये beginners, लेकिन again for complex type of data handling और instruction handling, आप एल्गोरिथम फिर वहां लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रॉपर एल्गोरिथम लिखेंगे, डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, तब भी आप एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। आप उसको कॉपी पर लिखें या नहीं लिखें। आपको अगर फैक्टोरियल निकालना होगा तो आपको समझ में आना चाहिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना होगा तो एनसीआर का फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन, फिर फैक्टोरियल एन माइनस, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप फंक्शन को कॉल कर पाएंगे कि आप परमुटेशन कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि परमुटेशन आपके लिख देने से कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एन भी आप लेंगे, आर भी लेंगे, कॉम्बिनेशन भी करेंगे, एनसीआर, परमुटेशन के लिए भी एन भी लेंगे इनपुट, आर भी लेंगे, और एनपीआर का फॉर्मुलेट होने के बाद जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को भी यूज करेंगे, तब जाके वो आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा आपका कंप्यूटर। दैट मीन्स एवरीथिंग इज अवेलेबल, यू हैव टू अरेंज दैट इन ए प्रॉपर मैनर। तो आपको सब कुछ अरेंज करके सिस्टम को देना पड़ेगा। वो चीज आपका प्रोग्रामिंग में तभी हो पाएगा जब आप एल्गोरिथम सही ढंग से लिखेंगे। तो कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम इज व्हाट इन दिस सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज। यहां पर आप कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं जस्ट टू इम्प्लीमेंट एल्गोरिथम। आप एल्गोरिथम बोल देते हैं तो फ्लो चार्ट भी आ जाएगा इसमें। तो एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, इसको इम्प्लीमेंट होता हुआ, एग्जीक्यूट होता हुआ देखना चाहते हैं तो सी, C++, जावा, .NET, ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जो ले रहे हैं, ये सारे लैंग्वेज है जिसमें आप इसको इम्प्लीमेंट होता हुआ देखेंगे। अब इम्प्लीमेंट करने के समय, इम्प्लीमेंट जब आप कर रहे होते हैं तो आपको ये चेक करना होता है क्या ये सही आउटकम जनरेट कर रहा है या नहीं। ये काम नॉर्मली जब वी आर मेकिंग ए कप ऑफ टी और मेकिंग एनी रेसिपी, तो इनिशियली बिफोर सर्कुलेटिंग दैट रेसिपी you want to test it, whether that recipe is okay or not, that is testing is okay or not from programmer end. तो प्रोग्रामर एंड में
आप चेक करेंगे कि आपका जो रेसिपी है वो गुड है कि नहीं। तो सबसे पहले यू वांट टू वैलिडेट टेस्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज व्हाट, दैट इज द वैलिडेशन स्टेज। वैलिडेशन स्टेज दैट मीन्स आप जो प्रोग्रामिंग किए उसको जिस पर्पस के लिए लिखा, क्या वो पर्पस फुलफिल कर रहा है या नहीं। यानी आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या वो प्रोग्राम सही आउटकम जनरेट कर रहा है या नहीं। सर हाँ सर, ये जो आई लिखा रहता है सर, इसका मतलब क्या होता दैट है? इज हाँ I.E दैट इज। तो वैलिडेशन स्टेज का मतलब हुआ वी वांट टू वैलिडेट आवर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं उसमें जब रन करते हैं तो रन करने में आपको टेस्ट डेटा देना होता है। जब टेस्ट डेटा देते हैं और आउटकम सही जनरेट हो रहा है, इसका मतलब आपका टेस्टिंग ओके है। अगर टेस्ट डेटा सही नहीं है, मतलब कि आपने चाय बनाया मेकिंग ए कप ऑफ टी में, और आफ्टर मेकिंग कप ऑफ टी दैट द टेस्ट ऑफ टी इज नॉट स्वीट, इट इज आपका जो है सावर, ये आपका नमकीन लग गया। इसका मतलब है कि शुगर और साल्ट जो दोनों व्हाइट कलर का होता है उसमें स्टिकर गलत लगा होगा, ठीक है ना। तो शुगर में साल्ट का और साल्ट में शुगर का लग गया होगा, इसलिए मीठा की जगह नमकीन चाय बन गया, ठीक है। तो दैट इज द लॉजिकल मिस्टेक्स। तो वो प्रोग्रामिंग में भी होगा। जब एरर डिस्कस करेंगे कितने तरह का है, तो दैट इज द लॉजिकल एरर, वो आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम लिखना है, आप प्लस के जगह माइनस लिख दिए, क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे कि हम तो 2 नंबर इनपुट लिए थे, वहां पर सम इक्वल टू नहीं लिखे थे, लेकिन सम इक्वल टू, सम तो वेरिएबल है, लेकिन a प्लस बी की जगह a माइनस बी लिख दिए। तो आप हर बार a और b इनपुट ले रहे हैं और 5 और 2 ले रहे हैं, आउटकम क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, ये कम हो जा रहा है, जबकि 5 और 2 7 होना चाहिए था। क्यों हो रहा है, तो ये लॉजिकल मिस्टेक है। ये आपका कंपाइलर इंटरप्रेटर नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि लॉजिकली अगर क्रिएट किए। अब बैंकिंग में कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, आप जब पैसा निकालें तो आपका अकाउंट में पैसा बढ़ जाए, ये भी गलती हो सकता है, ये लॉजिकल मिस्टेक है। बीइंग ए प्रोग्रामर आपको बैंक का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दे दिया गया, आप बैलेंस अपडेट करने में क्या किए, डिपॉजिट जब कोई कर रहा है तो उसमें विड्रॉल का फंक्शन लगा दिए, यानी कि बैलेंस दोनों केस में अपडेट होता है। कोई पैसा निकालता है तब भी अपडेट होता है बैलेंस, और कोई पैसा डिपॉजिट करता है तब भी होता है। लेकिन अब एक ऑपरेटर मिसमैच से क्या हो गया, बैलेंस जब डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपने लिख दिया बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस डिपॉजिट, जबकि आपको करना था बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस डिपॉजिट। तो आप 5000 डाले और जो आपका बैलेंस अपडेट का क्या हो गया, माइनस में चला गया। तो आप पैसा डाल रहे हैं पैसा, अब ये क्या हो रहा है, आप जब पैसा निकाल रहे हैं तो बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस विड्रॉल, ये प्लस माइनस का खेल हो गया। अब क्या है कि आप सोचेंगे निकालने में फायदा है, तो बैंक से जितना ज्यादा निकालेंगे उतना ज्यादा मेरा अकाउंट क्रेडिटेड होते जाएगा। तो ये एक प्लस माइनस से लॉजिकली कितना बैंक को लॉस होगा, आपको प्रॉफिट होगा। आपको भी लॉस होगा जब आप डिपॉजिट करना शुरू करेंगे, आपको बेनिफिट होगा जब आप विड्रॉ करेंगे। हाँ सर, अब बहुत सारे ऐसे टूल्स आता है, थोड़ा सा उसमें कोड लिखने के बाद इंटर मारते पूरा आधा कोड। हाँ वो तो है ही। वो आप बता रहे हैं वेबसाइट के बेसिस पर, ठीक है ना। तो वेबसाइट में तो टेम्पलेट, CSS बहुत तरह का ऑप्शंस है। टेम्पलेट आप यूज करिए, एडिट कर लीजिए, वर्डप्रेस यूज कर लीजिए। हाँ तो उसमें आपका कस्टमाइजेशन ऑफ डेटा हो जाता है, केवल इंफॉर्मेशन यू कैन से, तो यू कैन परफॉर्म एनी ओनली एडिटिंग ऑपरेशन। एडिटिंग कर लेंगे, कस्टमाइज कर लेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो टेस्टिंग अगर आपका ओके है, आप देखते हो जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में आप लेते हैं उस पर लिखा रहता है ओके टेस्टेड। ओके टेस्टेड लिखने का मतलब है वैलिडेशन इज ओके, बट हाँ, लेकिन वो वैलिडेशन ओके किस एंड से है, प्रोग्रामर एंड से है, डेवलपर एंड से है, यूजर एंड से नहीं है। आप जब यूज करते हैं तब भी टेस्ट होता है, क्योंकि हो सकता है कि बीइंग ए प्रोग्रामर आप जो कुछ टेस्ट डेटा दे रहे हैं वो अपने सहूलियत को देखते हुए दे रहे हैं, अपने कन्वीनियंस को। यूजर जब उसको यूज करेगा तो वो अपने हिसाब से डेटा देगा, इनपुट करेगा।
तो हो सकता है कि आपके इनपुटेड यानी कन्वीनियंट इनपुट से थोड़ा सा डिस्कम्फोर्ट इनपुट अगर यूजर दे दिया और आपका प्रोग्राम ओके नहीं है, इसका मतलब वो फेलियर हो गया। तो यही फीडबैक जब मार्केट में जाता है, Amazon को हो गया था। हाँ, तो यही अब किसी बड़े कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों आप मॉडिफाई करते हैं प्रोग्राम को, इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्रीवियस ट्रैक है उस प्रीवियस ट्रैक में कुछ फंक्शन में इनकम्प्लीटनेस है, पूरा नहीं है, जिसको पूरा करने के लिए आप आगे फिर फॉरवर्ड होते हैं, फिर रिसर्च करते हैं उस पर। तो ये रिसर्च प्रोसेस जब तक चलते रहेगा तब तक नया इनोवेटेड आइडिया आपके मार्केट में आते रहेगा। ठीक है, तो टेस्टिंग अगर ओके है तो इसके बाद का जो स्टेप है ये ऑप्शनल हो जाता है। डिबगिंग ऑफ द, हाँ, डिबगिंग ऑफ द प्रोग्राम का मतलब होता है वेरिफिकेशन स्टेज। वेरिफिकेशन स्टेज यानी कि अगर नमकीन है तब वेरीफाई करने का जरूरत है सॉल्ट और शुगर को, अगर नमकीन नहीं है तो वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है। दैट मीन्स डिबगिंग का मतलब हुआ, बग मतलब होता है एरर। डिबग कब करते हैं? जब एरर हो जाएगी तब डिबग करेंगे, जब एरर है ही नहीं, वैलिडेशन ओके है, तो नो नीड टू डिबग योर प्रोग्राम। दैट मीन्स वंस द वैलिडेशन स्टेज इज ओके, नो नीड ऑफ वेरिफिकेशन स्टेज, तो डिबगिंग इज ऑप्शनल। नाउ अब ये सब कुछ कर लिया, करने के बाद डिबगिंग के बाद अब आप चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर, जैसे अगर कोई प्रोग्रामर किसी कंपनी के थ्रू किसी बैंक का एटीएम का सॉफ्टवेयर बना रहा है तो वो चाहेगा ना कि उस बैंक के एटीएम में वो इंस्टॉल भी हो जाए, क्योंकि आप तो अपने एंड से यूज कर लिए, टेस्ट भी कर लिए, अगर डिबग का जरूरत डिबग भी कर लिया, लेकिन उसका फ्यूचर एक्सेशन जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेज इज द इम्प्लीमेंटेशन। आप भी कोई प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हैं, दैट मींस दैट यू आर इन दैट प्रोडक्ट इज इन इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो इम्प्लीमेंटेशन, बट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, इसको हम लोग 7 नंबर में रखेंगे, देयर इज ए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं जो डॉक्यूमेंटेशन को जानते हैं क्या होता है? इसमें से कोई नहीं होगा जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं जानता। ऐसा कोई नहीं होगा जो कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा हो, चाहे वो प्रोडक्ट एज ए प्रोग्राम बाइक हो, टीवी हो, रेफ्रिजरेटर, कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, लैपटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप। तो वो प्रोडक्ट जो है, वो प्रोडक्ट के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंटेड मैनुअल भी दिया जाता है। कितने तरह का होता है कौन बताएंगे? जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है आपको, वो कितने तरह का होता है? आपको तो एक ही तरह का होता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन केवल आपके लिए नहीं होता है, वो दूसरे प्रोग्रामर के लिए भी होता है। जैसे आप बाइक परचेज किया तो बाइक का जो मैकेनिकल इंजीनियर, जो आर्किटेक्चर, जो डिजाइन किए होंगे, जरूरी नहीं है कि उस बाइक का वही इंजीनियर हर बाइक को सर्विस प्रोवाइड करेगा। यानी अगर किसी तरह का एरर होगा तो उसको प्रॉपर्ली ट्रेन करना होगा ना अपने रिलेटेड प्रोग्रामर को, तो इंजीनियर्स भी तैयार करना होगा। हाउ द पर्टिकुलर प्रोग्रामर ट्रेंड द अदर प्रोग्रामर्स बाय द हेल्प ऑफ दैट मैनुअल। कोड भी डाल देता है। Yes, because in future if you want to modify it, so whenever you want to modify you need a previous code। तो अगर प्रीवियस कोड, आप कंपनी किसी को एक्जीक्यूटेबल फाइल पर काम कर रहा है, उसको क्या मतलब है कि सोर्स कोड में क्या है, लेकिन अगर उसको कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा तो अब प्रीवियस प्रोग्रामर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या नहीं कर पाएगा? वो कर सकता है। कैसे करेगा? जो नया प्रोग्रामर है उसको प्रीवियस कोड मिलना चाहिए, प्रीवियस फंक्शनिंग समझ में आना चाहिए। तो देयर इज यूजर मैनुअल एंड सिस्टम मैनुअल। यू विल गेट द यूजर मैनुअल। आप जब कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको यूजर मैनुअल दिया जाता है। आप बाइक खरीदते हैं तो एक्सटर्नल व्यू आपको जानकारी चाहिए, इंटरनल तो आपको जानकारी नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गिव मेंटेनेंस टू योर ओन बाइक। आप आपके बाइक में कोई खराबी होगा तो आप उसका निदान खुद नहीं करेंगे, आप सर्विस सेंटर में ले जाएंगे। तो यूजर मैनुअल इज फॉर यू टू आइडेंटिफाई। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बाइक पहली बार खरीदे, आप बहुत बार खरीदेंगे, स्टिल यू आर गेटिंग दैट मैनुअल। इवन प्रेशर कुकर आप परचेज करते हैं उसमें भी एक मैनुअल दिया जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि रेसिपी बनाने नहीं आता है, स्टिल यू विल गेट द पर्टिकुलर रेसिपी लिस्टिंग।
जो आप उसमें बना सकते हैं। तो यूजर, यस, तो यूजर मैनुअल इज व्हाट? यूजर मैनुअल गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट, because anytime whenever any functioning you will feel problem to execute any functioning, then you can take the assistance of that user manual. आपको बहुत बार ऐसा है कि कोई बटन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई स्विच आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस यूजर मैनुअल से आपको समझने में आसानी होगा। तो प्रोग्रामिंग के केस में भी ये चीज है, चाहे वो प्रोडक्ट के लिए करें या सॉफ्टवेयर बेसिस हो, वहां पर भी आपको यूजर मैनुअल यानी कि यूजर मैनुअल फॉर यूजर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करना होता है, एंड सिस्टम मैनुअल फॉर प्रोग्रामर ट्रेनिंग, यानी कि फ्यूचर प्रोग्रामर जो है आज हमने बना दिया, कल कोई और प्रोग्रामर इस पर वर्क करना चाहे तो उस सिस्टम मैनुअल से वो वर्क कर सकता है। तो इन यस यू आर रिसीविंग इन अ फ्रीक्वेंट मैनर, यूजर मैनुअल आप फ्रीक्वेंट मैनर में रिसीव करते हैं जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आप भी जब कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपसे यूजर चाहेगा कि आप मैनुअल दें कि कैसे इसमें काम करना है, उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दें, या ट्रेनिंग मान लीजिए एक यूजर को आप दे दिए, अब उस कंपनी में बहुत सारे यूजर होंगे, नए भी आएंगे बाद में, तो हर किसी को तो आप जाएंगे नहीं ट्रेनिंग करने, तो आपके पास एक मैनुअल होगा जिस मैनुअल से नए प्रोग्रामर या नए जो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे वो ट्रेंड अपने को कर सकेंगे। अगर किसी तरह का सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू आएगा तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी आपके पास प्रोग्रामर मैनुअल होना चाहिए एज ए सिस्टम मैनुअल। वो प्रोग्रामर मैनुअल में वो सारे इंटरनल डिटेल्स होंगे, सोर्स कोड होंगे, जिसको फ्यूचर रेक्टिफिकेशन या मॉडिफिकेशन करने में का उसमें प्रिविलेज अवेलेबल होगा, तो फ्यूचर प्रोग्रामर उसको रेक्टिफाई और मॉडिफाई कर सकता है। Are you getting the point? So that is the documentation of the program. So whenever you are also designing any program, you have to give proper documentation both for user as well as future programmer, next जो programmer होगा। Implementation, that means आप ATM में जो execute होता हुआ देख रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो आपका implementation phase में है, यानी सॉफ्टवेयर बना होगा, किसी लैंग्वेज में कोड किया गया होगा, उसके पहले एल्गोरिथम तैयार किया गया होगा, उसके बाद उसको टेस्ट किया गया होगा प्रोग्रामर एंड से, फिर उसको अगर जरूरत पड़ा होगा तो डिबग भी किया गया होगा, फिर उसको उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया गया होगा, तब जाकर उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज में से जाना पड़ा होगा। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट कि आज आपने किसी क्लाइंट को, कोई प्रोग्रामर एक क्लाइंट को किसी तरह का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया, तो क्या फ्यूचर में उस सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन हो सकता है। ये चीज आप जब एक मोबाइल परचेज करते हैं वहां भी देखते हैं कि आपका मेमोरी एक्सटेंडेड कितना हो सकता है, क्योंकि अगर आज के डेट में आप जो डेटा रख रहे हैं फ्यूचर में अगर इन्हांस हुआ, बढ़ा, तो क्या आपके सिस्टम में इन्हांसमेंट का एक्सटेंशन का फैसिलिटी है या नहीं, या इतना ही मेमोरी से काम चलाना पड़ेगा। तो ये एक्सटेंशन, फ्यूचर एक्सटेंशन को, कॉन्फ़िगरेशन को भी आप अपग्रेड कहां तक जा कर सकते हैं, इसके बारे में लेने के समय ही सोच लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है एक्सटेंशन एंड रीडिजाइन। हाँ, यहाँ जो लिख रहा है इसको दोबारा आपको लिखने का जरूरत नहीं है। PDF contains the details about each and every. I am discussing with each step with the real life examples only. ठीक है ना? Now I just open that one. Redesign, extension and redesign of the program. Now let's see here. Now अभी जो हम लोग 8 स्टेज डिस्कस किए, तो कलेक्टिवली ऑल द 8 स्टेजेस आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज PDLC, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और इट इज द सिस्टमैटिक वे टू डेवलप एनी क्वालिटी सॉफ्टवेयर। So we are just correlated it with the programming language and the software product, but the product you are using in daily life, that is also well developed quality product. So well developed quality product comes whenever various stages is accomplished in a proper manner. तो सबसे पहला ये जो 8 स्टेज हम लोग डिस्कस किए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी कि whenever you are getting any assignment, first of all you think about the problem, कि what is the definition of the problem. तो हम लोग एग्जांपल लिए, मैथमेटिकल एग्जांपल। Then after we design the problem, यानी कि डिजाइनिंग ऑफ द प्रोग्राम इज द प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस जो बोले, that is the designing the program.
before writing it in a programming language. After designing by using various tools like algorithm, flowchart, pseudocode, we think about any language. कोई language के बारे में सोचते हैं, that is the part of coding the program. जब language में implement करते हैं, लिखते हैं, तो फिर उसको test करते हैं. टेस्ट करने का मतलब है वैलिडेशन. टेस्ट करने के बाद अगर किसी तरह का कोई इनकम्प्लीटनेस नहीं है, यानी टेस्टिंग अगर ओके है, तो पांचवा जो स्टेप है डिबगिंग ऑफ द प्रोग्राम, ये ऑप्शनल हो जाता है. इसको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिबग में जो बग है, बग मींस एरर, और डिबग का मतलब कि एरर है. जब एरर है ही नहीं तो डिबग करने की जरूरत नहीं होगा. तो दैट इज द डिबगिंग. डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम हम लोग डिस्कस किए कि डॉक्यूमेंटिंग आप यूजर और सिस्टम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, यानी कि प्रोग्रामर और यूजर ऑफ दैट प्रोग्राम. तो यूजर जो होगा, क्लाइंट जो आपका होगा, उसके लिए भी मैनुअल तैयार करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, और जो फ्यूचर प्रोग्रामर होगा उसके लिए भी आप तैयार करते हैं. गेटिंग द पॉइंट. तो डॉक्यूमेंटेशन कंटेन्स बोथ यूजर मैनुअल एंड सिस्टम मैनुअल. आपके पास जो प्रोडक्ट का मैनुअल मिलता होगा, आप देखते हो उसमें लिखा रहता होगा यूजर्स मैनुअल. तो दैट इज फॉर हैंडलिंग द प्रोडक्ट इन ए प्रॉपर मैनर, बट ओनली हैंडलिंग, नॉट मेंटेनिंग. तो मेंटेनेंस कभी भी जब जरूरत होगा तो उसको इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ मॉडिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन करने की आवश्यकता होगी. तो इंटरनल व्यू आपको यूजर्स मैनुअल में नहीं मिलेगा, केवल एक्सटर्नल व्यू होगा. एक्सटर्नल कंपोनेंट की जानकारी आपको दी जाएगी ताकि आप उस प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली यूज कर पाएं. प्रोग्रामर तो सर बगल में लिखते भी रहता है. बिल्कुल, हाँ, दैट इज द कमेंट. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. सातवां जो है इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग द प्रोग्राम. ऑब्वियसली है कि आप इम्प्लीमेंट कहीं करेंगे, यूजर जब यूज करेगा तब गड़बड़ होने का संभावना है, उसमें गलती एरर होने का संभावना है. आप ऐसा एज्यूम करके बाइक नहीं खरीदते हैं, लैपटॉप नहीं खरीदते हैं कि फ्यूचर में रीइंस्टॉलेशन नहीं करना पड़े, कोई सॉफ्टवेयर आपका वायरस से अफेक्टेड नहीं हो. सिस्टम हो सकता है कभी भी, हाँ, आप मेजर लेते हैं, लेकिन स्टिल अगर वो प्रॉपर अपडेट नहीं है, कभी कोई वायरस अटैक हो गया, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि फिर आप उस लैपटॉप को छोड़कर दूसरा लैपटॉप परचेज करेंगे. यू नीड टू मेंटेन दैट. मेंटेनेंस इज ऑलवेज नीडेड. सर्विस सेंटर इसीलिए खुला हुआ है, क्योंकि आप खुद से मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो सर्विस सेंटर में जाएगा. जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके सर्विस सेंटर में जाएगा. अगेन एक्सटेंशन एंड रीडिजाइन. तो एक्सटेंशन एंड रीडिजाइन प्रोडक्ट का होगा तभी आप मार्केट में नया प्रोडक्ट देख पा रहे हैं. जो नया प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टोटलिटी में उसको चेंज किया जा रहा है, प्रीवियस आर्किटेक्चर में मॉडिफाई किया जा रहा है, और जो मॉडिफिकेशन किया जा रहा है उसके बेसिस पर कॉस्टिंग चेंज हो रहा है. आपको ये बताया जा रहा है कि पहले वाले में ये फीचर नहीं था, इसमें ये फीचर ऐड कर दिया गया. इसका मतलब ये नहीं है कि इंटायर स्ट्रक्चर चेंज हुआ, पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर पर आपने वर्क किया. क्यों किया? क्योंकि फीडबैक आया, मार्केट से फीडबैक आया कि ये प्रोडक्ट में ये शॉर्टकमिंग है. उस शॉर्टकमिंग्स पर काम करके आप कुछ मॉडिफाई कर दिए. तो बिल्कुल बिल्कुल एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट यू नीड टू मॉडिफाई एंड अपडेट. तो आपके पास रिसोर्स होगा तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं. तो ये फ्यूचर एक्सटेंशन है. तो यू जस्ट गो थ्रू द पीडीएफ. आफ्टर डिस्कशन आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द सेक्शन इज कंप्लीटेड. ठीक है ना. इसमें कुछ कुछ पार्ट आएगा जो आप एक बार देखेंगे, उसको नोट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है ना, नोट करके रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे. बट व्हेनेवर यू रीड दिस कंटेंट, यू जस्ट इमेजिन एनी प्रोडक्ट. कोई एक प्रोडक्ट को सोच के तब काम शुरू कीजिएगा, चाहे वो प्रोडक्ट आपका कोई लैपटॉप हो, ठीक है ना, कोई बाइक हो, कोई भी प्रोडक्ट. क्योंकि अभी आप कोई प्रोग्रामिंग कर नहीं रहे हैं, तो यू थिंक द प्रोग्रामिंग और प्रोडक्ट विच इज यूज्ड बाय यू. आप जो यूज कर रहे हैं उसको सोचते हुए इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी में समझ में आएगा. ठीक है ना. ब्लॉक कोड भी आप ब्लॉक कोड भी आता है. Yes. तो प्रोग्रामिंग नहीं आता है उसके करने. हाँ, बहुत एवरी रिसोर्स आर मेनी. यू नीड टू